Assalamu alaikum, and welcome back to Learning Lens, where we explore all ideas in education, innovation, digital learning. Today's guest is someone who beautifully blends STEM education, AI, and digital empowerment, especially for young learners and women. She's an ICT and STEM educator in Dubai, a certified AI generative educator, and a passionate advocate for future ready learning. So please join me in welcoming Ms. Aisha Fahad to Learning Lens. Aisha, it's a pleasure to have you with us. Before we begin, uh, I'd love I'd love for you to tell us a little bit about your journey. Thank you so much. And I'm really excited to be here with Learning Lens and to share a bit of my journey. And honestly, it's been a road filled with different turns and twists from engineering to education and from traditional teaching to AI and leadership training and now in differentiated teaching. So but each step taught me something meaningful and I hope today I can pass some of that inspirational forward. Thank you so much, Aisha. So, Aisha, let's start with your journey and your background. So, what sparked your journey into education and technology? Yeah. So teaching has been my passion since I was a child. And I used to play pretend teacher games and lining up my toys in front of me and scribbling on the whiteboards and even grading the copies, imaginary homeworks like this. So fast forward to today, and that love never faded. But the tech part, that was a happy accident that I converted towards from traditional teaching to the tech teaching. And when I saw my students' face light up with coding and creating their first game, it really hit me. So education is just not about textbooks now. It's about unlocking creativity. Technology became my new whiteboard, and now I merge both to turn classroom into idea labs. अब वो जो चीज़ मैंने I taught all the subjects science, English, maths, but जो coding और AI and digital tools पढ़ाते हुए I experienced the spark on children's face. वो मैंने किसी और सब्जेक्ट में नहीं देखा था. तो दैट बिकम अ पैशन नाउ कि जब वो बच्चे खुद से खुश होते हैं वो चीज़ बना के गेम डेवलप करके और जब वो बिहाइंड द सीन्स देख के ओ इट इज हैपनिंग लाइक दैट तो वो एक आपको अलग टाइप की जब खुशी और इस वो देती है मोटिवेशन. बिल्कुल बिल्कुल. So, Aisha, how long you have been in Dubai? I mean, आपका जो टीचिंग करियर है वो दुबई में शुरू हुआ या पाकिस्तान में भी आपने किया टीचिंग? Yes. Actually, I completed my Bachelor's of Engineering Computer Information System from NID University in 2008. फिर उसके बाद मैंने कुछ टाइम टीचिंग प्राइवेटली टीचिंग स्टूडेंट्स को टीच किया इन कराची फॉर 1.5 year. फिर आई गॉट मैरिड एंड मैं कम हियर. फिर मैं इधर जब आई तो इट्स लाइक 13 years बैक इन 2012. या तो फिर यहाँ पे भी मैंने स्टार्ट नहीं किया था एज अ टीचिंग करियर. I started few courses and I was as a student in that courses. तो फिर उसमें जब मैं अपनी फ्रेंड्स को भी थोड़ा बहुत पढ़ा दिया कोई पेयर स्टडीज कर ली तो उसमें मैं एक चीज कहूंगी कि सिर्फ मेरा शौक मुझे नहीं लाया मुझे मेरी फ्रेंड्स और जो मेरा स्टडी सर्कल था उन्होंने भी बहुत पुश किया कि उन्होंने मेरे अंदर एक चीज वो की कि नहीं नहीं तुम पढ़ाती हो तो बहुत अच्छा समझ आ रहा है तुम पढ़ा दो तुम ये कर दो तो फिर मुझे लगा कि अच्छा ठीक है उस चीज ने एक थोड़ा सा स्पार्क किया. देन आई स्टार्टेड टीचिंग यंग लर्नर्स हियर और फिर आई गॉट कनेक्टेड विद डिफरेंट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स एज वेल एंड देन स्कूल हियर. और फिर वो पेंडेमिक में और ज़्यादा कुछ लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ ऑनलाइन सेटअप्स के थ्रू मिली तो उसमें मुझे काफ़ी फिर मेरा एक्सपीरियंस ये होता है. बिल्कुल. पेंडेमिक में तो बहुत ज्यादा आपको मतलब कि अपॉर्चुनिटी भी मिली होगी आपकी जो इंटरेस्ट आपका Yes. सारा Even I started working with tutor bees as well in the pandemic time. yeah. Perfect. So Aisha, you worked with students from as you mentioned 20 plus nationalities. How has that shaped your teaching approach? Because there are different languages, different cultures, right? So Yes. एक तो आपका एक्सपीरियंस कैसा था और आपने कैसे मतलब उसको अप्रोच किया? Yeah. I would like to say first of all कि this is the blessing of living in Dubai कि आपको बहुत सारे मल्टी कल्चर्स के साथ बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है और स्टूडेंट भी इसीलिए मुझे मौका मिला यहाँ पे 20 plus नेशनलिटीज को पढ़ाने का.
Moroccan students, Tunisian students, Turkish, Sri Lanka, so many nationalities. So just imagine a class where every child's light bulb moment looks different. One student thrives with hands-on demos. Another needs storytelling. It's like being a chef, tweaking the recipe to suit each palate. And diversity is literally not a challenge. And in start, I thought, oh, diversity is like a challenge or language barrier is challenge, but actually it's our greatest teaching tool. और आई वुड लाइक टू से कि मैंने सीखा बहुत। मुझे इस चीज से फायदा मुझे बहुत हुआ कि मुझे जब इतनी नेशनलिटीज को मैंने पढ़ाया तो आई रियली लर्न अ लॉट, नॉट इवन टीचिंग टूल्स, पेरेंटिंग एज वेल। आई गॉट टू नो कि किस तरह के किस कल्चर में पेरेंटिंग ने क्या क्या फायदे दे रहे हैं बच्चों को और कहाँ पे उनको चैलेंजेस फेस करने पड़े। तो वो मुझे एज अ पेरेंट, एज अ मदर जो है, ये भी बहुत फायदा हुआ कि हाउ आई वुड लाइक टू कमेंट कि अरे अरब्स, जो अरब नेशनलिटी है, उनके बच्चे कितने रिजिलियंट हैं। दे आर नॉट लाइक कि टीचर ने थोड़ा सा डांटा और आंसू बहने शुरू हो गए। तो मैं ये चीज बड़ी इंस्पायर करती हूँ, फिर मैं उस पर देखती हूँ कि क्यों, व्हाई इट इज लाइक दैट। तो ये पता चलता है कि उनकी अरब के बच्चों में ये नहीं है, मतलब जी नहीं नहीं नहीं, ये बिल्कुल नहीं है। वो दे आर वेरी स्ट्रांग। तो कुछ नेगेटिविटीज भी कुछ देखी है, लेकिन उससे भी सीखने का मौका मिला कि क्या चीज नहीं करनी बच्चों के साथ कि बच्चे इतने वीक हो जाएं, क्योंकि आपको पता है करंटली जो है उसमें बच्चों को बनाना बहुत जरूरी है। तो ऐसी छोटी छोटी नहीं कहूंगी बल्कि बड़ी बड़ी चीजें मुझे बहुत खुद पर्सनली सीखने को मिली। और लैंग्वेजेस मुझे बहुत इससे फायदा हुआ कि डिफरेंट लैंग्वेजेस में छोटे छोटे कन्वर्सेशन, मैंने बच्चों से भी बहुत कुछ सीखा। तो वो एक अच्छा एक्सपीरियंस मेरा रहा टू डील विद डिफरेंट नेशनलिटी। बिल्कुल। अब ये मतलब कि बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है, क्योंकि आप जब डिफरेंट कल्चर्स को एक ही क्लास में देखते हैं तो, जी और ऑब्वियसली एज अ टीचर तो लर्न तो कर ही रहे होते हैं आप एवरी सिंगल डे। बट इट्स ये जो आपकी है ना कि जो डिफरेंट कल्चर्स, डिफरेंट नेशनैलिटीज, ये बहुत मतलब कि जी 20 जैसा आपने 20+ नेशनैलिटीज, तो ये यस 20x टाइम्स आपकी लर्निंग जो है वो ज्यादा। लिटरली 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 या। सो और देयर आर डिफरेंसेस इन कल्चर एज वेल, तो वो भी इंजॉय अच्छा लगता है कि जब आप डिफरेंट कल्चर्स को भी ऑब्जर्व कर होते हैं थ्रू चिल्ड्रन। तो वो भी एक अच्छा एक्सपीरियंस या रहा जो कि शायद किसी और कंट्री में मुझे इतना एक्सपोजर इस चीज का ना मिलता जो कि लिविंग हियर इन यूएई। दुबई इज अ हब, तो ऑफ जो कोर्स इज बिल्कुल ऐसे है। सही सही। सो आयशा, सो what inspired your shift towards STEM in AI education? या या स्टेम एजुकेशन एक्चुअली, जैसे कि मैंने आपको कहा कि मैं पहले साइंस, इंग्लिश और मैथ्स भी पढ़ा रही थी। बट नाउ यू हैव सीन कि अब ये सारी चीजें इंटीग्रेटेड होके ही स्टेम बन गई। और तो फिर दैट्स व्हाई इट्स नीडेड कि बच्चों को किस तरह से उसी की प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग जब कराई जाती है, दैट इज स्टेम। और स्टेम स्पार्क्स क्यूरियोसिटी इन चिल्ड्रन। तो बिल्कुल। स्टेम मेक्स द बोरिंग सब्जेक्ट्स इंटरेस्टिंग। तो दैट इज वेरी नेसेसरी कि फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स किस तरह से स्टैम्प, यानी कि अब जैसे बुर्ज खलीफा ही का मॉडल है, रियल मॉडल, उसमें रिफ्लेक्टिव ग्लासेस लगे हुए हैं जो कि शाम के टाइम या सनसेट के टाइम पूरे सन को रिफ्लेक्ट करते हैं। तो दिस इज फिजिक्स, बट व्हेन वी रिलेटेड इट विद द स्टैम टॉपिक एंड दिस प्रोजेक्ट कि हाउ, कि जब ये ऊपर गया इसका मॉडल और फिर आर्किटेक्चर्स ने इस तरह से इस फिजिक्स के कॉन्सेप्ट को इस तरह से प्रोजेक्ट में अप्लाई करते हैं, तो इट बिकम्स स्टेम। तो ये बच्चों के अंदर इंटरेस्ट बढ़ा देती है, क्योंकि हमने जब पढ़ा देयर वाज नो स्टेम कॉन्सेप्ट, और हमारे वाई आंसर्स ही नहीं हमारे माइंड से निकलते थे, क्यों पढ़ रहे हैं हम, इसका क्या एप्लीकेशन होगी। तो नाउ बच्चे एप्लीकेशन के साथ पढ़ रहे हैं। तो इट इज एक्चुअली लर्निंग विद एप्लीकेशन। तो डेफिनेटली फिर उसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा डीप होती है। बिल्कुल बिल्कुल आश। सो आश, अभी अभी आपसे पूछना है कि टीचिंग एंड लर्निंग अबाउट, मतलब कि यूएई में जो टीचिंग और लर्निंग है, आपने बताया भी था कि यूएई रिसेंटली introduced a mandatory AI education from grade 1, right? So, यस what do you think this means for the future of classrooms? यस एक्चुअली इट्स ग्राउंड ब्रेकिंग। एंड अभी जो लास्ट ग्लोबल एआई समिट हुआ है उसी के बाद ये अनाउंस हुआ है कि एआई विल बी मैंडेटरी फ्रॉम ग्रेड 1 फ्रॉम न्यू एकेडमिक ईयर दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम सितंबर। So yeah, it shows that the future is not waiting for students to grow up, and it's already here. So this shift will push teachers to become learners too, and classroom will become more project-based, collaborative, and tech integrated.
And it's not just about teaching, it's about thinking creatively and ethically as well. And they have launched so many setups to train teachers as well, क्योंकि teachers को भी AI training की जरूरत है. And in these summer holidays, यूएई गवर्नमेंट ने काफी सपोर्ट किया है to train AI teachers with AI support to integrate AI in classrooms from grade 1. बिल्कुल. और आयशा, ये आपने जैसे भी वर्ड यूज किया प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, तो प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग में बहुत ज्यादा काम हो रहा है, मतलब ग्लोबली भी, इवन इन पाकिस्तान एज वेल, कि Yes. प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग की तरफ बहुत ज्यादा मतलब कि इस वक्त हुआ है. जी. आपको पता है एक चीज, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग से बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है कि जो मल्टीपल इंटेलिजेंसेस हैं चिल्ड्रन के अंदर, या वो किसी एक चीज में अगर लेग बिहाइंड कर रहे हैं तो वो क्लास में पीछे नहीं रह जाते. फिर अब वो बच्चे भी केटर हो रहे हैं. एवरी चाइल्ड इज इंक्लूडेड नाउ. बिफोर इट वाज लाइक जो वीक स्टूडेंट थे वो आइसोलेट हो जाते थे, बट नाउ ऑल एवरी चाइल्ड इज इंक्लूडेड इन प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग. So Aisha, tell us more about your role at Young Leaders Hub in Dubai. How are you using tech to make learning meaningful for today's youth? Yes. So actually, we majorly focus on blending leadership with digital literacy, and I work on designing interactive workshops where students use tools like Scratch, Canva, PictoBlocks, not to just learn tech and Tinkercad as well, but to express their ideas, solve community problems, or even pitch digital startups. And it's all about relevance. So we are working on young entrepreneur skills as well. ताकि बच्चे जो हैं they are future leaders. They are not just learners or students right now. We are focusing and we are looking our children as future leaders. So we are trying to shape their futures right now to become thoughtful leaders, diligent leaders. That is the main focus at Young Leaders Hub. And we are teaching them basing on differentiated learning. So it is not like class 1, class 2, class 3. We are leveling the students, and whenever हमें लगता है कि कोई बच्चा अपने लेवल से ऊपर है, हम उसको फौरन ऊपर स्विच कर देते हैं. तो इस तरह इट इज नॉट लाइक ग्रेड 5 का बच्चा पूरा साल ग्रेड 5 में ही बैठा रहेगा. इट इज नॉट लाइक दिस. ग्रेड 6 का बच्चा पूरा साल ग्रेड 6 में ही बैठा रहेगा. इफ वी सी इफ अ चाइल्ड इज डूइंग गुड एट मैथ, हम उसको लेवल अप कर देते हैं, बेशक वो इंग्लिश में भी लेवल 5 पे ही है. तो इट इज लाइक दैट. So ये थोड़ा सा टीचर्स के लिए चैलेंजिंग है currently. Challenging है, but that is really nice for students. Yeah, yes. इसमें वो जो एक इंफीरियोरिटी और सुपीरियोरिटी का जो वो है ना एलिमेंट, वो खत्म हो गया. और बच्चों को इससे एक वो भी होती है कि हम अच्छा करेंगे, 2 months भी हम अच्छा करेंगे, देन वी कैन लेवल अप. तो वो एक चीज बच्चों के अंदर स्पार्क. So let's go to simplifying AI for children, जैसे आपने बताया. तो you've mentioned bridging playful learning tools like coding toys, right, with more formal AI education. So can you share examples of how this transition happens in real classrooms? Yes. So through small steps, like teaching how a recommendation engine works. So on YouTube, or using our children are watching their series on Netflix. So pattern recognition games. So these type of questions spark the curiosity. उनको ये तो दिख रहा है कि हम जैसी चीजें नेटफ्लिक्स पे देख रहे हैं, यूट्यूब पे देख रहे हैं, हमें वैसी ही रिकमेंडेशन आती जा रही है. ना सिर्फ बच्चे, बल्कि वो लेडीज भी. लेडीज का मैं ज्यादा नाम लूंगी कि मेरी ज्यादा फोकस लेडीज डेवलपमेंट और उनकी एजुकेशन में. तो बहुत से हमारी लेडीज भी दे गॉट स्केयर्ड ना. हाँ, हमने बात की और वो चीज सामने आ गई, हमने देखा और वो रिकमेंडेशन आने लगी. तो उसके पीछे जो पूरी AI है उसके बारे पहले इस पे क्वेश्चन करना बच्चों के साथ कि हाउ, कि ये कोई मैजिक है कि आप एक चीज तरह की चीज देख रहे हैं, वही चीज आपके पास आ रही है. तो फिर बच्चों के अंदर भी क्वेश्चंस होते हैं कि इवन टीचिंग चिल्ड्रन हाउ एलेक्सा रिस्पॉन्ड्स can spark discussions around voice AI. It's about making the invisible visible. कि बच्चों को पीछे बैक एंड पे क्या हो रहा है. तो उसके लिए वी आर यूजिंग टीचेबल मशीन्स, machinelearning.co.uk. सो उसमें बच्चों को हम छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स बनवाते हैं जिनमें हम बताते हैं खुद उनको कि एक बच्चा अगर छोटा है, उसने 1 year का बच्चा है, 1 year का बच्चा ही कैट एंड डॉग में डिफरेंशिएट करना सीख लेता है. कैसे? कुछ फीचर्स के थ्रू. इसी तरह हम उनको बच्चों को प्रोजेक्ट्स कराते हैं, इवन 6 and 7 years old चिल्ड्रन, कि हाउ वी टीच मशीन एक्चुअली by uploading different pictures, by telling the machine different features of cat and dog, and that machine is ready to differentiate between a cat and a dog.
एंड लाइक मतलब एक छोटे प्रोजेक्ट से बड़ा विजन दिया जाता है, तो उससे उनको आइडिया होता है कि यस दिस इज द थिंग, कि किस तरह एआई रिकॉग्नाइज कर लेता है हमारे पैटर्न्स। वेरी नाइस, वेरी नाइस। सो आयशा, कोई एग्जांपल्स बताएं, टूल्स, कोई एक्टिविटीज, जो टूल्स होते हैं एक्टिविटीज जो कन्वर्ट करते हैं यस, उसके surely, surely. So we might start with coding a simple game on Scratch, ठीक है, and then ask what if this character could learn from your moves. That opens the door of machine learning actually. Or we use robot toys like Dash and that connected to the real world AI like self driving cars. तो वो एक छोटे मॉडल से बड़ा विजन बच्चों को मिल जाता है। And जैसे मैंने आपको बताया टीचेबल मशीन, वो बहुत अच्छा टूल है बच्चों को ये पैटर्न रिकॉग्नाइज कराने का। और रॉक पेपर सीजर शू का हम एक गेम कराते हैं बच्चों को। बच्चे, आपको पता है रॉक पेपर सीजर शू का आजकल बहुत कर होते हैं, तो स्क्रैच पे ही उसका हम बनवाते हैं एआई इंटीग्रेटेड गेम, जिससे वो भी बच्चों को बड़ा उनकी क्यूरियोसिटी स्पार्क करता है कि पहले मशीन को हम ट्रेन करते हैं टीचेबल मशीन से कि दिस लॉट्स ऑफ पिक्चर्स ऑफ अवर फिस्ट, कि दिस इज रॉक, ठीक है। फिर उसको बहुत सारे हम पिक्चर्स अपलोड करके हैंड के डिफरेंट मूवमेंट से पेपर एंड सीजर, और फिर जब गेम स्टार्ट होता है कैमरा ऑन होता है, बच्चा जब वो एक्शन करता है और वो रोबोट उसको आइडेंटिफाई करते करते इट्स रोबोट और इट्स रॉक, इट्स पेपर, इट्स सीजर, तो फिर वो बच्चों को समझ आती है कि चीज ओ अच्छा पीछे मैंने ही इसकी ट्रेनिंग की है एक्चुअली एंड इट इज वर्किंग लाइक दिस। तो आयशा, ट्रेनिंग मॉडल्स ये वैसे मैं सोचता हूँ कि आजकल के जो बच्चे हैं वो बड़े लकी हैं कि लिटरली। इतनी जल्दी एज में वो ये पढ़ रहे हैं सब कुछ। आई जस्ट इमेजिन कि वो जब ग्रेजुएशन लेवल पे जाएंगे तो उस वक्त क्या क्या बने हुए होंगे। जी वो पता नहीं जी वो बिल्कुल, ग्रेजुएशन मम्मीज का करके एक कहीं क्वेश्चन 10 भी आता है लेके ये। बन सके नहीं। जी। कुछ मदर्स का, पेरेंट्स का एक आता है कंसर्न कि ये चीजें सीखने से तो बच्चों की क्रिएटिविटी खत्म ना हो जाए, लेकिन अब उनको ये भी अवेयरनेस दी जा रही है, सेशंस भी हो रहे हैं कि इससे क्रिएटिविटी खत्म नहीं होनी है, इससे तो क्रिएटिविटी का एक अलग लेवल पे बच्चे जा रहे हैं। जस्ट लेवल इमेजिन कि वो लेवल क्या होगा, और बच्चे जो इस टूल से नहीं इंटीग्रेटेड होंगे, नहीं उन्होंने सीखा हुआ होगा, वो बहुत पीछे रह जाएंगे। वो उस कंपटीशन में कहीं देयर विल बी नो प्लेस फॉर सच चिल्ड्रन और इवन एडल्ट्स। बिल्कुल, बिल्कुल आयशा, बिल्कुल, आई टोटली एग्री विद यू। सो लेट्स गो टू द अदर सेगमेंट, डिजिटल एथिक्स एंड वैल्यूज। सो आप उसमें बताएं कि जो टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट्स जो इतनी तेज हो रही हैं, so how do you integrate ethics and responsibility into early AI education? Yes. So we frequently discuss in our classes what is right and what is wrong. So even in technology, it is very important. And for example, is it okay for a robot to decide who gets help first in emergency? तो जो इमरजेंसी रोबोट्स हैं उनको भी इस चीज पे ट्रेन किया जाता है कि पीपल ऑफ डिटर्मिनेशन और older people like these things. So we role play, we talk feelings, we discuss fairness, and it's early digital citizenship. आप आईसीटी में हर ईयर में, चाहे हम ईयर 1 पढ़ा रहे थे या 2 या 3 ग्रेड जो भी, हर ग्रेड में पहला चैप्टर हमारा मस्ट है करिकुलम में, डिजिटल सिटीजनशिप एंड डिजिटल सेफ्टी एंड दिस थिंग। तो ये फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट चीज है, तो बच्चों को उस पर सिखाना कि आगे जो भी वो चीज ट्रेन करें, मॉडल करें, क्रिएट करें, तो उसमें ये एथिक्स बहुत जरूरी है। प्राइवेसी, ड्रोन्स, अगर हम मिनी ड्रोन्स का बच्चों को प्रोजेक्ट बता रहे हैं तो उस पर ये चीज कि वो किसी की प्राइवेसी तो इन्वेट नहीं कर रहा, और ये चीज है। फिर दूसरी चीज एथिकल उसमें आ जाती है। आप आजकल एक बहुत सुन रहे होंगे वर्ड एथिकल हैकिंग। तो जब अभी ये सारा सीन हुआ था पाकिस्तान का भी, इसमें कुछ यंग स्टूडेंट्स ने एथिकल हैकिंग पे बड़ा सपोर्ट किया पाकिस्तान के साथ। और तो हम इस पे नहीं हम कहते कि कंट्री वॉर्स में, बट फॉर इस्लाम एंड फॉर मतलब बीइंग रिस्पॉन्सिबल सिटीजन और ऑर्गेनाइजेशंस के साथ साथ एथिकल हैकिंग इट्स मैंडेटरी फील्ड नाउ। कि उसमें होता ये कि इट्स नॉट अबाउट हैकिंग, इट्स अबाउट कि आप ऑर्गेनाइजेशन के कंसेंट के साथ उसके सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, उसके वेलनरेबल पॉइंट्स को फिगर आउट करके फिक्स किया जाता है कि बाहर से कोई हैकिंग ना हो। दिस इज कॉल्ड एथिकल हैकिंग। तो उस पे यूथ काफी इंटरेस्टेड भी है अब, और आई थिंक इस पे काम करना चाहिए स्पेशली मुस्लिम यूथ को, बिकॉज आगे जो है वो दिस इज साइबर अटैक्स एंड साइबर वॉर्स, दिस विल नॉट बी द एरा ऑफ दैट ओल्ड काइंड ऑफ वॉर्स। तो उसके लिए भी प्रिपेयर करना हमें अपने यूथ को बहुत जरूरी है कि एथिकली किस तरह से इन चीजों को यूज करना है। So, बिल्कुल। So as a Muslim educator, do you see
opportunities to align AI ethics with Islamic values Yes, or cultural teachings? एब्सोल्युटली. सो कॉन्सेप्ट्स लाइक अकाउंटेबिलिटी, कि हम अकाउंटेबल किसको हैं, ना किसी ऑर्गेनाइजेशन को, ना किसी कंट्री को, ना किसी लीडर को. अल्टीमेटली हम किसको अकाउंटेबल है. वट एवर वी आर डूइंग, वट एवर डिजिटल फुटप्रिंट्स वी आर लीविंग बिहाइंड, तो हमें इन सब चीज़ों का जवाब देना है. तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा मैं मेंशन करती हूँ अपने तमाम स्टूडेंट्स को, ट्रेनीज को, कि वट एवर वी आर डूइंग ऑन अवर लैपटॉप्स और मोबाइल्स, यूजिंग अवर कीबोर्ड और स्क्रीन्स, ये चीज हमारी पीछे रह जानी है हमारे जाने के बाद. वो जो एक सदका जारिया, गुनाह जारिया का कॉन्सेप्ट है, वो चीज जरूर हमने माइंड में रखना है कि कहीं हमारा यही काम, कोई हम काम कर जाए ऐसा कि वो, आपको पता है, फिर वो डिजिटल फुटप्रिंट्स है. तो एंड वी टॉक फीलिंग्स एज वेल, और जस्टिस अदल, ये जो हमारा इसका बहुत ज्यादा है कि आपने फेयर रहना है. कहीं पे आपने टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए किसी के साथ अनफेयर नहीं हो जाना है. और इंटेंशन, ऑफ कोर्स इंटेंशन इज द फर्स्ट एंड फोरमोस्ट थिंग, कि आप बच्चे अगर आगे कुछ क्रिएट भी कर रहे हैं, उससे फायदा क्या होगा कम्युनिटी को, ये चीज जरूर माइंड में रखें कि उससे किसी को बेनिफिट भी होगा या नहीं. दिस अलाइन ब्यूटिफुली विद रिस्पॉन्सिबल एआई. एंड इट इज important for students to know that faith and technology are not separate. दे कैन गाइड ईच अदर. और फिर एज अ कुरान स्टूडेंट एज वेल, जगह जगह कुरान में ये आयत आई है, हमने पढ़ी बार बार, कि अल्लाह ताला ने बार बार गौर फिक्र सीखने को कहा है कुरान में. तो यही तो गौर फिक्र है कि ये इसमें अगर हम बहुत अमेज होते हैं. इवन मैं कहती हूँ जो नॉन मुस्लिम्स हैं वो भी अमेज होते हैं, ओ एआई इज डूइंग दिस, एआई इज डूइंग दैट. लेकिन बैक एंड पे देखें तो ये अल्लाह ताला ही ने माइंड दिया है, अशरफुल मखलूकात को, जो ये चीजें बना रही है. दिमाग इंसान का ही लग रहा है. तो अगर इसी पे हम गौर करें तो अल्लाह ताला तक वाकई में पहुंचने में देर ना लगे. लेकिन वो हमारी कमी है कि हम गौर फिक्र उतना नहीं करते जितना अल्लाह ताला ने हमें कहा है करने को. तो ये चीज भी है. बिल्कुल आयशा, टेक्नोलॉजी तो टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उसको एथिकल भी यूज होगा और अनएथिकल यूज भी होगा, और मोस्टली यस अनएथिकल ही होता है. जी, तो आपके बिल्कुल. बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. यस, मैं तो कहता हूँ कि नॉट जस्ट एज अ मुस्लिम बट एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ ह्यूमन बीइंग, यस, करेक्ट. अगर हम एज अ ह्यूमन करेक्ट, बीइंग सोचेंगे तो फिर वो ऑन स्केल बात जाती है. तो बिल्कुल आपने सही कहा. नॉट फॉर ओनली मुस्लिम, एज अ ह्यूमन बीइंग. बिल्कुल, इट्स अ वेरी गुड पॉइंट. So let's go further, Aisha, about empowering women through digital literacy. So tell us about your work training over 150 women and digital skills through the Ladies Forum of the Pakistan Association Dubai. Yeah, I remember that. it has been, yeah, it has been a humbling experience, and we offered sessions on graphic designing, video editing, and other tools, other social media content writing skills. And so many of these women later used these skills to start small businesses or help their children as well, or started teaching. It was not just digital training actually for me, it was confidence building. और उसके बाद भी जो मैं connected रही हूँ ladies से, तो माशाल्लाह they are doing very well. They are serving their skills with Pakistan and Pakistan in Dubai as well, or in event management, in so many things. तो like जबकि वो basic skills ही हुआ ये कि मेरा वो भी start इस तरह ही हुआ था कि मुझे शुरू में लगा कि ये इतनी basic चीजें, ये क्या सिखानी है. शुरू में मैं अपना मैं इसलिए थोड़ी सी बाउंड थी. लेकिन जब मैंने एक दो ट्रेनिंग्स हुई तो मुझे आइडिया हुआ कि नहीं, इट्स अ नीड. और जो है, यस, तो मेरी तब थोड़े से ये मुझे एक आँख खुली कि नहीं नहीं, इट्स अ नीड ऑफ दिस टाइम एक्चुअली, और स्पेशली फॉर मम्मीज, हाउसवाइफ, लेडीज. और उनका कहना, पहला जब भी वो कोर्स में एनरोल करते थे, बहुत ज्यादा मेरे पास यही कमेंट आता था कि मुझे कुछ भी नहीं आता कंप्यूटर का, और मैं तो इससे बिल्कुल रिलेटेड ही नहीं हूँ, क्या ये कोर्स मेरे लिए होगा. तो जब फिर वो एक कोर्स करती है, उसके बाद उनको आइडिया होता है कि वो कितना ज्यादा जरूरी है और बेनिफिशियल भी है. एंड नाउ दे हैव सोशल मीडिया पेजेस, दे आर रनिंग स्मॉल बिजनेसेस. तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशी होती है कि जी, कि इवन बच्चों से डील करने में अभी आपको एज अ पेरेंट बहुत जरूरी है डिजिटली एम्पावर्ड होना. Very nice, Aisha. So Aisha, why is digital empowerment for women, especially mothers, so important for future generations? Yes, because I think they are the first tech mentors at home. So a mother who understands technology can guide her children with awareness and confidence, and it breaks the cycle of fear and creates a generation of problem solvers.
तो एक वो जो फेयर और उनका वो है ना, वो भी निकलता है कि वी कांट डू एनीथिंग ऑन स्क्रीन या डिजिटली। तो दे आर डूइंग वेरी वेल, दे आर क्रिएटिंग पोस्टर्स, गूगल फॉर्म्स, हेडर्स, यूट्यूब थंबनेल्स फॉर द चैनल्स। और माशाल्लाह ये छोटी छोटी स्किल्स, आपको पता है आजकल फ्रीलांसिंग में भी कितना काम आ रही है, तो घर बैठे लेडीज के लिए तो ये बहुत अच्छी स्किल्स है। आयशा, इसमें एक और क्वेश्चन ऐड करूंगा फॉर women who are housewives, और हाउसवाइफ्स हैं या स्ट्रगलिंग women हैं जो जो जिनको काम की जरूरत है, राइट? सो उस उनके लिए आप क्या एडवाइस करेंगी अकॉर्डिंग टू योर डिजिटल लर्निंग एक्सपीरियंस, उनके वो यस। क्या किस तरह अपना रोड मैप बनाएं फ्रॉम द मतलब कि ग्रास रूट लेवल? यस। आई ऑलवेज एडवाइस कि स्टार्ट स्मॉल। तो learn with your child, even start learning with your child, and don't fear AI, it's just another language। अगर AI नहीं भी तो AI से सिर्फ AI ही नहीं है, there are so many digital skills। Yeah. So you didn't know how to use a smartphone once either, right? We don't know how to use internet। एक time था उस time internet use करना था, and now Yes. it's a second nature। So That's just right. that first click, your first learning, your first course, your first digital show up startup, आप एक एक फर्स्ट स्टेप जरूर लें, उसके बाद आपको पता चलेगा व्हाट इज योर नीश। तो पहली चीज तो है कि फोकस ऑन बेबी स्टेप्स। एंड ये ना सोचें कि कोई भी छोटी चीज डजेंट मैटर, छोटा छोटे स्टेप्स भी बहुत मैटर करते हैं मुझे अपनी जर्नी पे। देयर वाज अ टाइम, आई एम मदर ऑफ 2 गर्ल्स, तो देयर वाज अ टाइम कि मेरे बच्चे भी छोटे थे, तो मैंने उस टाइम बिल्कुल कुछ भी नहीं, आई वाज जस्ट फोकसिंग ऑन देयर पेरेंटिंग और गिविंग फुल टाइम टू देम। फिर लेकिन छोटे छोटे स्टेप देखे, ठीक है, उस विद इन बाउंड्रीज में रहते हुए, उन लिमिट्स में, अपने उस स्केड्यूल में रहते हुए, व्हाट कैन आई डू। तो उस टाइम लगता था ये छोटी सी चीज क्या मैटर करेगी, बट लॉट्स ऑफ सर्टिफिकेट, क्योंकि कंप्यूटर इंजीनियरिंग इज नॉट इनफ, यू नो। सबसे ज्यादा रैपिड एडवांसमेंट हमारी ही फील्ड में हो रही है। आफ्टर एवरी फ्यू मंथ्स वी नीड टू रिफ्रेश अवर स्किल्स। ऐसा ही। आज हम कोई एक टूल सीखते हैं काम करने के लिए, बिलीव मी नेक्स्ट ईयर में वो वाला टूल अपग्रेड करके अपनी क्लासेस में ला रही होती है कि नहीं अब ये वाले से ज्यादा अच्छा ही काम होगा। तो उसके लिए ज़्यादा सीखना बहुत जरूरी है। तो लर्निंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इन स्मॉल स्टेप्स। टेक स्मॉल स्टेप्स, और जरूर आज आप थोड़ा सा शुरू करेंगे, वो कहीं ना कहीं आप जरूर पहुंचेंगे थोड़े टाइम के बाद। तो एंड देयर आर सो मेनी अपॉर्चुनिटीज डिजिटली एज वेल। यस के मार्केट इज सैचुरेटेड, मैं ये नहीं कहूंगी कि आप जैसे ही आप बस काम शुरू करेंगे देयर आर लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज, बट यस अगर आप यू आर कंसिस्टेंट, यू आर प्रोएक्टिव, देन यू कैन मेक योर प्लेस समवेयर। इसमें मैं भी ऐड करता हूँ आयशा जरूर। कि जैसे आपने कहा ना कि स्मॉल स्टेप्स वगैरह, वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है। और उसके साथ जो मुझे मोस्ट इम्पोर्टेंट लगता है, मार्केट सैचुरेटेड है लेकिन एक चीज कॉमन है, वो है कम्युनिकेशन स्किल्स। और करेक्ट। और आई बिलीव कि कम्युनिकेशन स्किल्स इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट यस। स्किल दैट यू बिल्कुल शुड हैव, बिल्कुल राइट? बिल्कुल। और वो इफ जो यू हैव कम्युनिकेशन स्किल्स, या कम्युनिकेशन तो आप कहीं स्किल भी। अगर आप में आ गए तो आपका 50-60% मसला हल हो गया। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। किसी भी 100% करेक्ट। So, 100% करेक्ट। यस। जो भी मुझसे कोई क्वेश्चन करता है तो मैं उनसे सबसे पहले यही पूछता हूँ कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स करेक्ट। के साथ आपकी ऑफ कोर्स इंग्लिश है, द मेन लैंग्वेज इज इंग्लिश ग्लोबली, यस। राइट? राइट ग्लोबली नाउ यस। इन दिस एरा, आज मतलब कि हमारे एरा में इंग्लिश ही है जो हम यस। सबको कनेक्ट कर रही है ग्लोबली, एंड दैट करेक्ट। इज द ट्रूथ एंड वी हैव टू एक्सेप्ट इट। यस और एग्जैक्टली। मैं यही कहता हूँ कि आपने जो भी करना है, कुछ भी करना है, उससे पहले आपने लैंग्वेज सीखनी है। लैंग्वेज बिल्कुल जरूरी है। बिल्कुल करेक्ट। जरूर। अगर फॉर एग्जांपल आप जर्मनी जा रहे हैं तो आपको पता है कि यस। जर्मनी जाने के लिए आपको लैंग्वेज एग्जाम्स देने पड़ते हैं, यस। क्लियर करने करेक्ट। पड़ते यस यस। हैं, राइट? यस यस करेक्ट। तो इसी तरह ये मेरी भी मतलब कि एडवाइस जो 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 क्योंकि मेरी भी बहुत सारा इंटरेक्शन होता है लोगों से जो हेल्प चाह रहे होते हैं बिल्कुल। कि ऑनलाइन जॉब के बारे में और वगैरह वगैरह। तो बहुत सारे लोग मतलब कि बहुत स्किल्डफुल हैं बट दे आर नॉट गुड इन कम्युनिकेशन स्किल्स। सो करेक्ट, यू आर 100% उससे करेक्ट। वो 10% रह जाता है उनका स्किल। ये बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। सो आप क्या सजेस्ट करते हैं इसके लिए, क्या करना चाहिए कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन स्किल्स, स्किल्स? अब देखिए कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए अब मैंने
आप जैसे अभी आपने सारे बहुत सारे टूल्स बताए हमें, तो इसी तरह आपको डुओलिंगो का पता होगा टूल। यस यस, कितना अच्छा टूल है वो डुओलिंगो। बिल्कुल। यहाँ तो स्कूल्स में वो कहा जाता है कि बच्चों को डुओलिंगो से ही, क्योंकि यहाँ फ्रेंच भी है, अराबिक भी है, इंग्लिश भी है, तो डुओलिंगो से ही बहुत म- फायदा है। मेरा तो या मेरा तो सिंपल सा एडवाइस होती है कि गूगल पे सर्च करें। करेक्ट करेक्ट। मतलब कि इसका मतलब सर्च करने का मतलब ये कि आप मतलब कि इंडिपेंडेंट हो। बिल्कुल, एवरीथिंग रिसर्च बहुत जरूरी है। रिसर्च, यस, रिसर्च इन एवरी फील्ड, चाहे कम्युनिकेशन स्किल है, लर्निंग का लैंग्वेज है, और यही मैं कह रही हूँ, कुरान में बार बार गौर व फिक्र, और हम वही लैकिंग कर रहे होते हैं रिसर्च पे ही। इफ यू हैव द राइट क्वेश्चन, तो यस, आपको किसी की हेल्प की जरूरत नहीं है, सिर्फ गूगल की जरूरत है। करेक्ट। और अब तो गूगल के अलावा भी आपको पता ही है कि डीप सीक, चैट जीपीटी इतनी पर्सनलाइज्ड आपको दे रहा आपको है गाइडेंस। सारा सर्च करके दे बिल्कुल देता है। बिल्कुल बिल्कुल, आप अपने वीकनेस डालें, वो आपको खुद गाइड कर देगा कि वेयर यू शुड वर्क ऑन एंड या हाउ टू वर्क ऑन। सो ऑन ग्रास रूट लेवल जो लोग बड़ा परेशान होते हैं, जैसे आपने बताया कि आपको उसकी नीड फील नहीं होती थी कि ये भी मैंने पढ़ाना है, जी, लेकिन आपको रियलाइज हुआ कि इसकी नीड है। यस, सो मेरी मेरी तरफ से ये एडवाइस ये होती है कि आप किसी से ना पूछें, ठीक है, आप बस सर्च करना सीखें एंड हैव अ करेक्ट, राइट क्वेश्चन इन योर माइंड, जस्ट सर्च द राइट थिंग, और गोल्डन इंटरनेट एडवाइस आपको सब कुछ लिटरली। मिल जाएगा। सो करेक्ट जब वो इंडिपेंडेंटली आप सर्च करना शुरू हो जाएंगे, सो आपके रास्ते खुद ही बनना शुरू हो जाएंगे। हम करेक्ट। आयशा, आपने, मैंने भी, और हम सब कितना कुछ सीखते हैं सर्च करने से, बहुत सारी इवन चीजें बहुत हैं। कुछ, जी, क्या स्किल शेयर प्रोग्राम जो टीचर बीस का है, उससे माशाल्लाह एक दूसरे, बिल्कुल, वो 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 भी ज्वाइन बड़ी करके ही, कमाल प्लेलिस्ट है। अगर अल्हम्दुलिल्लाह, लोग उसको गौर करें, लोग अगर वो बिल्कुल, बहुत कुछ सीखने को मिला। बड़ी बीइंग कमाल चीज है। एजुकेटर, मैंने बहुत कुछ वहां से सीखा, कम्युनिकेशन स्किल्स भी सीखी डिफरेंट एजुकेटर्स के साथ Exactly. बात करके। बिल्कुल ऐसा ही यस है। So in last, Aisha, about your personal philosophy and advice. So यस, what's ओके। what's one mindset shift you believe every teacher needs to embrace today? Okay, yeah. So that I think that you don't need to be the smartest person in the room. You just need to be the most curious. And yes, being a lifelong learner myself, so learning with your students is that strength, not a weakness. And currently, a good teacher is learning with their students in the classroom as well. And one of my mantra, working mantra is also this, कि जो actually Zoom का है कि वर्क स्मार्टर नॉट हार्डर। तो Yeah. जो चीजें आपको फैसिलिटेशंस मिल रही हैं डिजिटली, उनको यूज करें, उनको अडॉप्ट करें, और वर्क स्मार्टर नॉट हार्डर, और फिर जो आपके पास टाइम बचता है उसको प्रोडक्टिविटी में, डिफरेंट प्रोडक्टिव चीजों में यूज करें। डोंट वेस्ट योर टाइम कि हम जिस तरह ओल्ड स्कूल मेथड से अगर कोई चीज करते आ रहे तो हम उसी तरह करेंगे। नो, जब आपके पास नाउ वी हैव टूल्स, सो यूज दैम। हम्म। बिल्कुल, वर्क स्मार्टर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यस। बिल्कुल। सो तो मैं क्योंकि अपने साथ बहुत सी टीचर्स को देखती हूँ, दे आर स्ट्रगलिंग, और दे आर मतलब पुटिंग लॉट्स ऑफ एफर्ट्स एंड टाइम इन बेसिक थिंग्स। तो जब वी हैव टूल्स, तो व्हाई नॉट यूजिंग दैट टूल्स, लाइक आप देखें अभी क्विज, आपने भी यूज किया होगा क्विज के नाम से जो एक ऐप है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हम yes, ऑनलाइन एजुकेशन में बहुत यूज करते हैं। तो बिल्कुल। पहले भी यूज टू मेक क्विजेस बाय अवर सेल्फ, ठीक है, हम उसको बनाते थे, उसमें फिर डिफरेंट इमेजेस भी डालते थे, उसको इंटरेक्टिव भी बनाते थे। नाउ देयर इज नो नीड, क्विजेस ने ही एआई इंटीग्रेट कर दिया है। तो नाउ वी जस्ट अपलोड द पीडीएफ ऑफ अवर लेसन, एंड इट टर्न्स द होल लेसन इनटू इंटरेक्टिव इंटरेस्टिंग क्विज। सो बिल्कुल। हमें क्या जरूरत है कि हम स्टिल वैसे ही काम करें जो पहले से करते आ रहे थे। तो बहुत सी चीजें ये मैं ट्रेनिंग में जरूर इंक्लूड करती हूँ कि जो चीजें एआई टूल से फैसिलिटेशन मिल रही है, यूज दैम। तो आयशा, मैं ये क्वेश्चन ना बहुत मैं सबसे ही करता हूँ, क्वेश्चन अबाउट एआई के फेस टू फेस लर्निंग, ठीक है, और वर्सेस ऑनलाइन एजुकेशन। तो ये जो यस, फेस टू फेस लर्निंग वर्सेस ऑनलाइन एजुकेशन, आप इसमें क्या कहते हैं, विच वन इज बेटर? और इन इन नियर हम्म, फ्यूचर क्या ऑनलाइन एजुकेशन फेस टू फेस एजुकेशन को ऑब्सोलीट कर सकता है, या फेस टू फेस एजुकेशन? देखिए जी, इसका यस या नो आंसर नहीं हो सकता बेसिकली।
इट डिपेंड्स, कुछ लर्नर्स के लिए फेस टू फेस ही जरूरी है और कुछ लर्नर्स ऑनलाइन में भी बहुत अच्छा कर लेते हैं। तो अगर मैं अपनी पर्सनली बात करूं, क्योंकि मैं खुद भी नॉट एन एजुकेटर, आई एम ए लर्नर माई सेल्फ एज वेल, बहुत सारे मैं कोर्सेज में भी इनरोल्ड हूँ करेंटली भी और बहुत सारे। तो मैं जो है मतलब ऑनलाइन लर्निंग में मुझे कोई इशू नहीं होता और मतलब मुझे लगता है कि मेरे लिए ज़्यादा ईजी है ऑनलाइन लर्निंग। बट बीइंग अ टीचर, बहुत सारे स्टूडेंट्स को जब मैं देख रही होती हूँ तो कुछ स्टूडेंट्स ऑनलाइन लर्निंग में बहुत अच्छे कर रहे होते हैं, लेकिन मुझे लगता है यंग लर्नर्स के लिए फेस टू फेस इज बेटर because they need a physical touch or they need a teacher's warmth as well. So वो चीज lacking है of course online education में, नहीं emotional आयशा, जरूरत तो आप कह रही, लेकिन मेरा क्वेश्चन ये कि विल इट कि ऑनलाइन yes, एजुकेशन। I'm coming towards this point, I'm coming यस। towards this point। जो मुझे दिख रहा है फेस टू फेस लर्निंग will be obsoleted और majorly it will be online learning, जो मुझे और दिख रहा है। let's see। क्योंकि देखिए वी एज ह्यूमन हमें कंफर्ट चाहिए, अल्लाह ने बनाई है ऐसे इंसान को, ठीक है। तो ऑनलाइन लर्निंग में जो कंफर्ट है आपको पता ही है कि एज कम्पेयर टू फेस लर्निंग में नहीं है। नहीं। वी आर लर्निंग फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ अवर बेड एंड सोफा एंड काउचेस। We don't need to drive or getting ready and going taking out car to go somewhere to take classes. So these will be a hassle in future time. मुझे ऐसा लगता है कि करंटली हो ही चुका है कि इंस्टीट्यूट्स आर गिविंग यू बोथ द ऑप्शंस and after some time majorly most of the people will be going to choose online education। वाओ। I think so। क्योंकि अच्छा अब मेरे भी बच्चे बड़े हो रहे हैं, हाँ यहाँ से बच्चों को भेजा जाता था यूके कनाडा यूनिवर्सिटीज के लिए, बट नाउ दे आर offering you डिस्टेंस online लर्निंग। bachelor degrees, yes। या So why we will send our children far away from us। आयशा आयशा, एक एक बड़ी अच्छी एक एनिमेटेड मूवी थी, शायद आपने देखी, वॉली। नहीं मैंने नहीं देखी। वॉली में जी। ना, वॉली की स्टोरी में ये होता है कि जो अर्थ है ना वो सारा के सारा मतलब कि डिस्ट्रॉय हो जाता है, उसमें कुछ उग नहीं रहा होता। और बिकॉज वही मशीन्स आ जाती हैं और वो उसकी वजह से वो मतलब कि डिस्ट्रक्शन हो जाती है। सो एक पुरानी मशीन जो है वो, उसका नाम होता है वॉली। वो सिर्फ और सिर्फ जो सारा स्क्रैप होता है ना दुनिया का, वो छोटा सा रोबोट होता है, वो अपने ना वो उसके बॉक्सेस बना के ना वो उसको इकट्ठा करता रहता है, गार्बेज को इकट्ठा करता रहता है। और जो लोग, जो थोड़े से जो ह्यूमंस रह जाते हैं, वो रॉकेट पे ना ऊपर चले जाते हैं, ऊपर ही रहते हैं वो, ठीक। और वो ट्रैवल करते रहते हैं। तो वो जो ऊपर, वो जब वो ट्रैवल कर रहे होते हैं फॉर सेंचुरीज, तो वो अपनी सीट से नहीं उठते, सब कुछ उनकी सीट पे ही होता है। और उन्होंने वर्चुअल गॉगल्स लगाई होती हैं, ठीक है। और वो ओबीस हो चुके होते हैं, उनसे ना उठा जा रहा होता है ना कुछ हो रहा होता है, करेक्ट। ठीक है। वो मतलब उस रॉकेट पे दे आर फाइंडिंग मतलब कि लाइफ ऑन सम प्लैनेट। हम्म वो इस हम्म तरह- हम्म हम्म वो मूवी बड़ी एक इमोशनल मूवी, वो आप जरूर देखिएगा, मैं आपको उसका लिंक। देखेंगे इंशाल्लाह। यस, देखिए उसके लिए भी चीजें वॉल्यूम आएंगी, जाहिर है बहुत सारे इसके कॉन्स भी हैं ऑनलाइन। उसके हर चीज अगर ऑनलाइन हो जाए तो ऑफ कोर्स ये ओबेसिटी और बहुत सी चीजें जिसमें बहुत से नुकसान भी हैं, लेकिन उसके लिए भी चीजें आ रही हैं। लाइक आपने शायद देखा हो कि अब लैपटॉप का, ये वाला लैपटॉप का कल्चर खत्म होने वाला है। देयर विल बी द oculus type of glasses and your screen will be in front of you, and while you are working out a treadmill and you are using your laptop। तो these are things are in market now, तो जाहिर है ऐसी भी चीजें हैं। और बाकी यस you're right के ऐसे ही है तो कि आयशा, चीजें। लास्ट क्वेश्चन, क्या टीचर्स और पेरेंट्स एआई से इंटिमिडेट होते हैं? और यस यस। एडवाइस उनके लिए, आप एडवाइस के यस लोग जी, ये घबराते क्वेश्चन हैं। बहुत आता है पेरेंट्स की तरफ से, बहुत कंसर्न भी होता है ये कि एआई इंटिमिडेट वाली जो बात आपने की, स्केरी, वो तब तक स्केरी है जब तक यू आर नॉट गेटिंग द नॉलेज बिहाइंड एआई। तो जब आप उसको लर्न करते हैं ना कि एक्चुअली व्हाट इज हैपनिंग बिहाइंड एआई, तो फिर दैट इज नॉट स्केरी। बट यस कि थोड़ा सा डिजिटल प्राइवेसी और ये चीज़ों पे काम करना बहुत ज़रूरी है, बच्चों को ये चीज़ें सिखाना बहुत ज़रूरी है कि डिजिटल प्राइवेसी का बहुत ख्याल रखा जाए, क्योंकि नाउ नथिंग इज प्राइवेट ऑन स्क्रीन एंड डिजिटल वर्ल्ड, राइट। तो ये चीज़ स्केरी है। Thank you so much, Aisha, for sharing your insights, your journey, and your passion for reimagining learning through AI and digital skills. Yeah, Your work
Your efforts to empower both students and women are truly inspiring. We wish you continued success as you help shape a future where every learner is equipped for the digital age. And to our viewers, don't forget to watch, like, and subscribe for more such powerful conversations here on Learning Lens by tutorbees.net. Until next time, thank you. Thank you so much for having me with you. Thank you so much.